کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہم کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ لڑ نہیں سکتے, آپ ان کے اگینسٹ آواز نہیں اٹھا سکتے, آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. وہ اسلحہ خرید رہے اور انہیں مسلمانوں پر ظلم. کیا لگتا ہے آپ کو کرکٹ کو سپورٹ کریں گے آپ یا کرنا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال سے آپ کے اس مطلب اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ جناب ہماری پی ایس ایل جو ہے وہ اسے سپورٹ کر رہی ہے, وہی پروڈکٹ ہے, تو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور باقاعدہ اس کی کمپین چلانی چاہیے کہ یار ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مسلمان ہیں, کم سے کم ہمیں باقاعدہ دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم نے یہ مصنوعات کا بائیکاٹ ایک مثال بننا چاہیے. ہمارے تمام جتنے کرکٹرز ہیں ان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے, بلکہ ہمارے جتنے بڑے ہمارا پی سی بی کا چیئرمین ہے ان کو چاہیے, بلکہ جو ہماری اعلیٰ سطح پہ جو ہمارے وفد بیٹھا ہوا ہے گورنمنٹ کا, انہیں چاہیے ان چیزوں کا بائیکاٹ. اور بینگ اے مسلم ہمارا بنتا بھی یہی ہے. اب بتائیں, اب آپ پی ایس ایل کو سپورٹ کریں گی؟ نہیں, میں تو پھر اگر ایسا ہے کہ وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ اسپانسر کر رہے ہیں, وہ والی پروڈکٹ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کریں تاکہ اسرائیلی جو کہتے ہیں لوگ ہیں اسی فنڈ سے وہ ہمارے بچوں پہ, ہماری ماؤں پہ, ہماری بہنوں پہ, ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور ہم اسی کیسے اسی پروڈکٹس کو اس کی اسپانسرشپ لے کے اور اب ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ان کے لیے بڑی شرمناک چیز ہے اور بڑی کیا کہتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ کیا میں بولوں, مجھے یہاں پہ جو کوسچن مارک آ رہا ہے سب ہماری حکومت پہ بھی آ رہا ہے, حکومت پہ بھی آ رہا ہے, اور جو یہ لیگ کا مین ہیڈ ہے اس کو یہ چیز محسن نقوی صاحب سے آپ کا مطالبہ ہے؟ بالکل, ان سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ فلسطین کے اوپر کیا جو ہے نا وہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عافی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس. ایک ایسا ملک جو اپنی اشیاء کو بیچ کر اس کے فنڈ سے ہمارے اوپر وار کرے, ہمارے بچوں کو مارے, ہمارے گھروں کو جلائے, کیا ہم ایسے ملک کو سپورٹ کریں گے؟ کیا ایسی اشیاء کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل ہرگز نہیں. ابھی جو پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے وہی پروڈکٹس جو ہے وہ پی ایس ایل کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ کرکٹ لورز کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیا وہ پی ایس ایل کو سپورٹ کریں گے, کرکٹ کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ کرکٹ کو اتنا بڑا فرض نہیں ہے کہ ضروری دیکھنی ہے. کرکٹ اگر نہ بھی دیکھیں گے تو گزارا ہو جائے گا, مگر انسانیت کے ناطے ہمیں ان پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جن وہی پروڈکٹس جو ہیں وہ پی ایس ایل کو سپانسر کر رہی ہیں. اگر ہم وہاں پہ جا کے فزیکلی لڑ نہیں سکتے, مگر یہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ بائیک آؤٹ کریں. تو آئیں لوگوں سے جانتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ سر. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ جو اسرائیل کی جارحیت فلسطین پہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سر ہم تو جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار یہ اسرائیلی نہایت مسلمانوں پر, ان چھوٹے چھوٹے مسلمان کے بچے ہیں ان پر جو ہے وہ جس طریقے سے بمباری کر رہا ہے یا وہاں پہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, میں کہتا ہوں یہ سراسر ناانصافی ہے. دیکھیں, اگر یہود و نصارہ کے کسی بھی ایک کنٹری میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہو جائے نا, تو جس کنٹری پہ بھی وہ انگلی اٹھائے نا تو سارے اکٹھے ہو کے اس کو دہشت گردی کا یا اسے دہشت گرد قرار دیتے ہیں یا اس کے بارے میں ایک غلط الزامات لگا دیتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اب مسلمانوں کو بھی متحد ہو جانا چاہیے, مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے جی ٹرمپ آ رہا ہے تو ٹرمپ آنے سے جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی, اسرائیل جو ہے وہ جنگ نہیں کرے گا, مسلمانوں پر نہتے جو ہے وہ انہیں شہید نہیں کرے گا. لیکن سراسر ناانصافی دیکھنے کو ملی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے اسے سپورٹ کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے اور باقاعدہ مسلمانوں پر ظلم, دیکھیں وہ ان کی نئی جنریشن کو ختم کرتے دکھائی دے رہے ہیں. میرے خیال سے اب وہ اگر ان کی نئی جنریشن کو ختم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ان کا مدعا کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ان غریبوں کی, ان مسکینوں کی, ان لوگوں کی جگہ کو ہتھیانا جا رہے ہیں. اب بتائیں کہ آپ کا گھر ہو اور آپ کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے, آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا جائے, آپ کے گھر پہ زوردار تماچے مار کے آپ کو گھر سے ٹھڈے مار کے نکال دیا جائے, آپ اس کے آگے جو ہے وہ ریزسٹنس نہیں کریں گے نا, تو یار آپ وہ کیا کریں ان غریبوں کے پاس, ان فلسطینیوں کے پاس؟ آپ بتاؤ کہ نہ تو ریزسٹنس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے, یا تو کہ نا اپنے مقابلہ کرتے ہیں اپنے ٹکر کے لوگوں کے ساتھ, تو ٹکر کے لوگ تو ہے ہی نہیں وہ لوگ, وہ تو بیچارے معصوم ہیں.
टक्कर के हैं, मगर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुस्लिम कंट्रीज के लिए है, क्योंकि इनको भी मुत्तहिद होकर ये सोए हुए लोग हैं, ये मुत्तहिद नहीं है, ये इनके अंदर वो कहते हैं ना कि लेग पुलिंग है कि यार ये हमने इसके मामले में नहीं जाना। आप देखें वैसे मुस्लिम कंट्रीज का इत्तेहाद किस चीज़ का इत्तेहाद है? जब आप लोग किसी इस्लामी मुल्क में जुल्म हो रहा है, आप उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। कहते हैं ईमान के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा क्या है? अगर आपके पास ताकत है तो हाथ से रोको, बिल्कुल ऐसा। अगर आप हाथ से नहीं ना रोक सकते तो जुबान से रोको, बिल्कुल। अगर आप जुबान से नहीं ना रोक सकते तो एक सबसे कम अदना दर्जा है आपका ईमान का कि आप उसे दिल में ही तो बुरा तसव्वुर कर लो कि वो लोग बुरे हैं, या उस गुनाह के बारे में ज़हन में ये दिल में ये ख्याल करो कि वो बुरा है, यानी कि ये ईमान के दर्जे हैं। और आपके पास अल्लाह ने ताकत दी है, हाथ दिए हैं, असला दिया है, हर चीज़ मौजूद है, आप इसराइल को रोक ही नहीं सकते यार। अगर आप उधर जाके फिजिकली लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनकी प्रोडक्ट्स को उठाओ ना, उनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए ये सबसे कम आला, मतलब इसे अदना दर्जा कह सकते हैं कि अगर आप उनकी ये तो हमारे कंट्रोल में है। आप उनकी मसनूआत का बाइकआउट कर देना, ये ईमान का सबसे अदना दर्जा हम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लड़ नहीं सकते, आप उनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते, आप उनकी चीजों का बाइकआउट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, क्यों ना करें भाई। मैं तो कहता हूं कि हर जगह उनकी प्रोडक्ट की जो है वो उसको चस्पा करनी चाहिए और बाकायदा उस पर मेंशन किया जाए ये आप अपने मुसलमान मतलब फ़लस्तीन का खून जो है बहा रहे हैं। अगर ये चीज़ें खरीद रहे हैं तो आप उनका खून बहा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि मुल्क में अवेयरनेस दें, लोगों को, आवाम तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो उनको हम बाइकआउट करें कम्प्लीटली और उनको बैन करें। अच्छा, आप क्रिकेट लवर हो? आप बिल्कुल क्रिकेट लवर हैं, हम क्रिकेट को देखते हैं, उसे लव करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की परफॉर्मेंस है अब तो लव भी नहीं रहा, अब तो लव नाम का भी वो बाकी तो लव शव छोड़ें, बाकी ये बताएं कि जो इस दफ़ा PSL होने जा रहा है उसको जो स्पॉन्सर कर रही है कंपनी, वो वही प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि बाइकआउट हो। तो इसके बारे में आप क्या? बड़ा दुख हुआ अगर ये मैंने, क्योंकि मैं अभी मैच ही स्टार्ट होते हैं तभी हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया तो अभी तो बल्कि हम तो इस PSL को ही हमें बाइकआउट कर देना चाहिए अगर वहाँ इसराइल की मसनूआत मौजूद है। यार मैं तो कहूँगा कि हर उस मुसलमान को चाहिए कि यार जो भी आपको इसराइल के कहीं भी प्रोडक्ट नजर आए तो उसका बाइकआउट किया जाए, बाकायदा उसकी कैंपेन चलाई जाए। PSL में तो आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन पे नजर आने वाली है वो चीजें, तो क्या आप कहते हैं कि मैच देखने चाहिए? गर्मी का सीजन है, यकीन करें कि अंधाधुंध जो है वो कोको कोला बिकती नजर आएगी, पेप्सी बिकती नजर आएगी, हत्ता कि आपको हर वो मसनूआत बिकती नजर आएगी जो इसराइल की है, लेकिन हम खाने पीने में कभी नहीं देखते कि यार ये इसराइल की प्रोडक्ट है। मतलब आंखें बंद करके खाते जा रहे हैं और उनके मसनूआत में हम पैसा उन तक पहुंचाते जा रहे हैं, वो असला खरीद रहे हैं और उन्हीं मुसलमानों पर जुल्म। क्या लगता है आपको, क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे आप या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आपके इस मतलब इसके बाद जो आपने बताया कि जनाब हमारी PSL जो है वो इसे सपोर्ट कर रही है, वही प्रोडक्ट है, तो हमें बाइकआउट करना चाहिए और बाकायदा इसकी कैंपेन चलानी चाहिए कि यार हमें होश के नाखून लेने चाहिए। मुसलमान है, कम से कम हमें बाकायदा दुनिया को पैगाम देना चाहिए कि हमने ये मसनूआत का बाइकआउट, एक मिसाल बनना चाहिए। हमारे तमाम जितने क्रिकेटर्स हैं उनको भी यही काम करना चाहिए, बल्कि हमारे जितने बड़े हमारा PCB का चेयरमैन है उनको चाहिए, बल्कि जो हमारी आला सतह पे जो हमारे वफ्द बैठा हुआ है गवर्नमेंट का, उन्हें चाहिए इन चीज़ों का बाइकआउट। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा बनता भी यही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके जज्बे को सलूट करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी अपनी पाकिस्तानी नहीं है और मैं यूज़ नहीं करती। हमें लग भी रहा है जैसे आप सपोर्ट कर रही है फ़लस्तीन, आपने फ़लस्तीन का बैच लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काफ़ी लोगों पे काफ़ी कंट्रीज़ में ये इकदाम हो चुके हैं कि बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी कराची में 1-2 वीडियो मौसूल हुई है कि वहाँ पे KFC को बैन किया गया। अच्छा, आप क्रिकेट लवर हैं? बिल्कुल, डाई हार्ट फैन। अच्छा, अभी PSL होने जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। वो आप देखेंगी? मैं मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं देखूंगी, क्योंकि मैं काम भी साथ करती हूँ और आई थिंक 10th लीग स्टार्ट हो रही है PSL की और इसमें डिफरेंट टीम्स हैं। मैं तो उसी टीम को सपोर्ट करूंगी जो अच्छा खेलेगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बेस पर आगे होगी। मैं आपको बता दूं कि PSL जो इस साल होने जा रहा है पाकिस्तान का, उसको वही प्रोडक्ट्स जो है स्पॉन्सर कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अब बताएं, अब आप PSL को सपोर्ट करेंगी?
नहीं, मैं तो फिर अगर ऐसा है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो वाली प्रोडक्ट जिनको हम कह रहे हैं कि बाइकआउट करें, ताकि इसराइली जो कहते हैं लोग हैं उसी फंड से वो हमारे बच्चों पे, हमारी माओं पे, हमारी बहनों पे, हमारे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, और हम उसी कैसे उसी प्रोडक्ट्स को उसकी स्पॉन्सरशिप लेके और अब उनको सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये तो उनके लिए बड़ी शर्मनाक चीज़ है, और बड़ी क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ कि क्या मैं बोलूँ, मुझे ना यहाँ पे लफ्ज़ जो नहीं आ क्वेश्चन रहा। मार्क आ रहा है सब हमारी हुकूमत पे भी आ रहा है। हुकूमत पे भी आ रहा है, और जो ये लीग का मेन हेड है उसको ये चीज़ मोहसिन नकवी साहब से आपका मुतालबा है? बिल्कुल, उनसे मेरा ये मुतालबा है कि आपको ये नज़र नहीं आता है कि फ़लस्तीन के ऊपर क्या जो है ना वो जुल्म कर रहा है इसराइल। PSL के बारे में कहा है कि आप क्रिकेट लवर होने के बावजूद आप रद्द करती हैं ऐसी क्रिकेट को, और उसको सपोर्ट करने से आपने इनकार किया, तो इसके लिए आपको सल्यूट है। और दूसरा आप ये बताएं कि जब कहते हैं कि जब जुल्म का दायरा रोका ना जाए तो जालिम जो है वो उसका अपना दायरा वसी करता जाता है। कल को अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता, ये दायरा इतना वसी हो जाए कि हमारे तक कान पहुँचे। देखें ना कि आप हमेशा दूसरे की जब तकलीफ को देखते हैं ना, आप ये सोच के उसका साथ दें, हमदर्दी दिखाएं कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, या हमारे ऊपर भी ये सिचुएशन आ सकती है, और कल को हमें किसी की मदद लेनी पड़े, और हमारी जब कोई मदद नहीं करेगा तब हम पे क्या गुजरेगी। ये तो मकाफाते अमल है। बिल्कुल मकाफाते अमल है ये चीज़। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मुतालबा है अवाम का जो इसराइल की तरफ से जो जारहियत हो रही है फ़लस्तीन पे, तो उसको काफ़ी जो मुतालबात हैं अवाम के कि इसराइली प्रोडक्ट्स को जब बैन किया जाए, वहीं पे अगर देखा जाए तो जो PSL होने जा रहा है पाकिस्तान में, उसको जो स्पॉन्सर कर रही है वो वही प्रोडक्ट्स हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मेरा दिल उठ चुका है, अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा दिल नहीं करेगा। मैं सॉरी सर। वैसे आप ये क्रिकेट लवर है? सर मैं बहुत बड़ा क्रिकेट लवर था। चलें जी, अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपकी इस जुर्रत को और आपकी इस कोशिश को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। कि अभी एक जो जारहियत चल रही है इसराइल की फ़लस्तीन पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जुल्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन पर, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को उनकी मदद करनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले लेने चाहिए। ठीक है, उनको बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है कि वो जुल्म करें किसी भी मुसलमान कौम पर, या कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो ईसाइयों का हो या किसी भी किस्म का कोई भी इंसानियत। इंसान तो इंसान होता है। इंसान तो इंसान है, किसी को किसी पे कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी पे जुल्म करे। बिल्कुल ऐसा ही है, इंतहा जुल्म करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, कम से कम अगर हम जाके वहाँ पे जहाद नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, जितनी कहते हैं कि जितनी जिसकी लेवल होता है, औकात होती है, उतने तक भी अगर वो कोशिश कर दे तो उसकी कोशिश जो है अल्लाह ताला के हुजूर कबूल होती है। तो क्या उनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बैन होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी, सरकारी तौर पर ये जो है ना वो सरकारी सतह पर ये चीज़ें बैन होनी चाहिए, सरकारी सतह पर। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो इसका इक़दाम जो है कर चुके हैं, और अभी तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है कि KFC और वो काफ़ी प्रोडक्ट्स को है बैन किया जा रहा है। चलें, बेहतर है, बाइकआउट कर रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह होना चाहिए। अच्छा, अभी PSL होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिन प्रोडक्ट्स को हम चाहते हैं कि बैन हो, उनका कम्प्लीटली बाइकआउट होना चाहिए, वही जो कंपनीज हैं वो PSL को सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको हम बैन कर रहे हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करी जा रही हैं। ये तो बिल्कुल दोगली पॉलिसी है। जी, ये तो दोगली पॉलिसी ने, एक तरफ हम उनकी चीज़ों को प्रोडक्ट को बैन कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, तो तरफ हम उससे उनको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप चाहते हैं कि ये आप सपोर्ट करेंगे, मैचेस देखेंगे आप? नहीं, हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे, बस देखे जो से प्रोडक्ट्स हैं इसराइली, देखो वो हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद कर, वो फंड उधर जाता है ना, ये हमारी हुकूमत को चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हमारी जो सी एजेंसी है या पाकिस्तानी फ़ौज पहले नंबर पे मानी जाती है दुनिया में, ठीक है ना, मगर इनको चाहिए ना, ये जो से हमारे मुसलमान भाइयों को वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, हम यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान से यही बात ही कर सकते हैं, उनसे मुतालबे कर सकते हैं ना, उनके बारे में जो से ना मुसलमान जो से हमारे भाई हैं उनकी मदद की जाए, या जो से इसराइल है जो से एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपको सल्यूट करते हैं हम, आपके जज्बे को कदर करते हैं आपकी, और जो भी इन्होंने बात की है, मुतालबा किया है, हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस पर भी कुछ इक़दाम किया जाए। थैंक यू सो मच।